सिलेबस के थ्रू आप माइक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूपीएससी का सिलेबस इज द बेस्ट टूल थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द माइक्रो थीम्स एंड पीवाईक्यूज उसमें फिर चार चांद लगा दे। दो तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगा, बट मोर और लेस जो आपको उसमें आंसर करना है वो बहुत सिमिलर होता है। कमीशन का इस चीज पे बहुत आई थिंक स्ट्रिक्ट नजर रहता है कि आप रेलेवेंट आंसर कर रहे हो। आपसे ग्राउंड वाटर पूछा है, आप लेक के बारे में आंसर में बीच में बात करने लगोगे, यू वोंट फेच मार्क्स, यू हैव टू स्टिक टू ग्राउंड वाटर। सो दिस इज माय स्पेक्ट्रम का नोट्स। जो वो स्पेक्ट्रम का पोस्ट स्पेक्ट्रम में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर्ड है ना। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट अगर आप छोड़ दीजिए तो सिर्फ प्री मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले तक जो भी हमारा नेशनल स्ट्रगल रहा है उस वाले पार्ट को आई थिंक स्पेक्ट्रम कवर्स इट इन 400 to 500 पेजेस। उसको मैंने आई ब्रॉट इट डाउन to 50 to 60 pages. As you can see, we are here to make sure that you build your one pager notes correctly, right? So note making is a complex process. Further, it's the one pager notes that will get you a rank. And we are convinced, rankers are convinced that this is something that is very, very important in your UPSC preparation now, right? All of you probably are attempting 26, 27. So we have a beginner's house. Great, wonderful. And you might have seen Nikita on our platform before. She needs no introduction anymore, but just for the sake of it, she is All India Rank 408 this year. And she is a philosophy graduate and probably a postgraduate also. Her life has revolved around philosophy subject. She did it from Delhi University. And yeah, she definitely believes in this, that one pager notes are something which is important for you all to to help prepare this exam. And she is someone who cleared this exam in her multiple attempts, but it was her first mains. So of course she was not able to clear prelims before, but when she cleared prelims she could complete the examination process. So she knows the importance of one pager notes, and she will emphasize on that in this session. So over to you, Nikita. Thank you so much for taking out your time and joining us at Souls Daily. Thank you, Saket sir, for giving me this opportunity to speak to students about the one pager notes. Hello, everyone. My name is Nikita, and as sir said, I am AIR 408 this year. So we will quickly move to the session and not take too much of everybody's time, and we'll try to make it as fast as we can, and at the same time we'll try to make it so holistic that आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे बढ़ना है. So as sir told that this was my fourth attempt and I could not clear prelims in the first three attempts, but when I did, मेरा मेंस एक बार में क्लियर हो गया. एंड द बिगेस्ट रीजन आई कुड डू दैट was I had my one pager notes ready. Now, why हर टॉपर या हर रैंकर का इम्पोर्टेंस इज सो मच ऑन वन पेजर नोट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि प्रिलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होता है वो हमें लगता है उस टाइम तक, जब जब तक हमारा प्री नहीं निकला होता है ना, हमें लगता है कि अरे 3 साढ़े 3 महीने बहुत हैं और ये कर लेंगे वो कर लेंगे रोज पढ़ेंगे तो हो जाएगा. ट्रस्ट मी, नहीं होता है. बिकॉज द होल प्रिपरेशन ऑफ मेंस इज वेरी वेरी टायरिंग. आप 3 3 4 4 दिन जब रोज रोज आंसर राइटिंग करोगे, ट्रस्ट मी फिफ्थ डे आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा. सो दैट इज वेयर योर वन पेजर नोट्स दे कम इन. what you have beforehand is आपके हर जीएस पेपर का you have 1 से 2 पेज का नोट्स. we usually call it one pager notes क्योंकि टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं तो एक पेज में उनको समराइज किया जा सकता है. बहुत बड़े टॉपिक्स अगर होते हैं जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस आप खोल सकते हो तो वी गो फॉर 1 or 2 पेज, बट नॉट मोर देन दैट अगेन. so if you have that, you can escape that whole process of picking up that holistic mota mota books all over again and going through all the pages. फिर से क्या अंडरलाइन किया था, क्या नोट्स बनाया था, उसको बार बार देखने से बेटर है कि आप एक जगह उसको समराइज करके नोट डाउन कर लो. एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट. ट्रस्ट मी, आप पीवाईक्यूज देखिए, अपने वन पेजर नोट्स बनाइए एंड कीप राइटिंग आंसर्स. दैट इज इनफ फॉर यू टू मेक श्योर कि आप मेंस क्लियर कर रहे हो एंड देन मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हो.
Right. So, as Nikita's already said that because in those 90 days you don't have a lot of time, so these notes come in very much handy. So, of course, Nikita, before they jump to probably making one pager notes, which is the last thing they would be able to achieve, they will begin somewhere, right? Yes, Their initial notes will also not be perfect as one pager notes. yes, yes. They might make bulky notes, they might include dynamics which are not relevant for the paper. So the first process, I think, is, as you also said, looking at the PYQs. Hmm. What better than micro themes in that? So Yes, would yes, you like to throw more on this? यस सो माइक्रो थीम्स का ऐसा है सर कि व्हाट आई फील इज कि सिलेबस के थ्रू आप माइक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. यूपीएससी का सिलेबस इज द बेस्ट टूल थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द माइक्रो थीम्स एंड पीवाईक्यूज उसमें फिर चार चांद लगा देते हैं. सो इट इज इजी कि आप सबसे पहले तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके आंख के सामने आपका यूपीएससी का मेंस का सिलेबस होना चाहिए. प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा होता है तो आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर इट, बट मेंस का सिलेबस बिल्कुल आंखों के सामने चिपका होना चाहिए वेयर यू कैन रीविजिट इट ऑलमोस्ट एवरी डे. एक पॉइंट के बाद मुझे याद हो गए थे कुछ कुछ सिलेबस के लाइंस डायरेक्टली. दैट इज हाउ मच आई इन डेप्थ मैंने सिलेबस देखा था. वहां से वी नीड टू पिक अप द थीम्स, माइक्रो थीम्स एज वी कॉल इट. कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मेंशन्ड है GS1 के पेपर में, तो वो उस पूरे थीम को पिकअप करिए आप. एंड यू कैन ऑलवेज सी कि ये जो हमारा थीम है ये कितने बार रिकरिंग, कितने बार आ रहा है हमारे एग्जाम में. और आप देखिएगा कि जोग्राफी 2024 वाज द ओनली ईयर जिसमें ज्योग्राफी के दो तीन क्वेश्चन इन्होंने कम किए थे और सोसाइटी के बढ़ा दिए थे, विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ द कमीशन टू डू बिकॉज वो हमेशा एक ही पाथ फॉलो नहीं करते. बट उससे पहले अगर आप देखिए तो 2023 तक ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते थे GS1 पेपर में. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो समथिंग जो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था. आता ही आता था हर साल, एक ही आएगा मे बी बट आएगा जरूर. सो व्हाट आई सॉ, मैंने पीवाईक्यू पहले तो मैंने सिलेबस में देखा कि अच्छा ज्योग्राफी के सिलेबस में मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है. फिर मैंने उसकी एक माइक्रो थीम बनाई. माइक्रो थीम एज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या पूछ रहे हैं. और फिर पीवाईक्यूज बगल में रखा कि ओके ठीक है क्या क्या इन्होंने पूछ रखा है पहले से, कि कौन से मेटल की बात कर रहे हैं, कौन से मिनरल की बात कर रहे हैं, अगर इस मिनरल की बात कर रहे हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी आयरन ओर के बारे में अगर पूछ रखा है और अगर आयरन ओर न्यूज में भी चल रहा है, तो आई यूज टू गो बैक टू द न्यूज पेपर और द बर्निंग इश्यूज का मैगजीन एंड जस्ट गो थ्रू इट कि अच्छा ठीक है इस बारे में क्या बात हुई है, एंड इंक्लूड इट इन माई वन पेजर नोट्स. और एक सेपरेट करंट अफेयर्स का थीम बना लिया सब्जेक्ट वाइज, जस्ट टू मेक श्योर कि ये इनके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं. तो यहाँ पे माइक्रो थीम का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं. 5-5 6-6 साल का गैप्स होता है उनमें. अगेन यू कैन नॉट इग्नोर देम, बट ऑफकोर्स आपको उनका वैल्यू समझना है और कॉस्ट बेनिफिट समझना है कि किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. जैसे एंड ये वाला एग्जांपल निकिता, अगर आप देखो वाटर मैनेजमेंट का क्या ज्योग्राफी है. में, तो अगर मुझे वन पेजर नोट इस पे बनाना हो, तो हाँ आई हाँ. सी कि ये रेकरिंग थीम है एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन कमिंग. या तो वन पेजर नोट्स में अब मैं इनमें डायनेमिक्स ढूंढूंगा. एम आई राइट ऑन दिस? एग्जैक्टली यस. सो आप जैसे देखिए जैसे वाटर मैनेजमेंट है. वाटर मैनेजमेंट में 17 16 15 16 में दो क्वेश्चंस और 20 में 19 में. एंड इफ यू सी आप अगर देखिए तो माइक्रो थीम बेसिकली इस चीज का है क्या, कि आपको वाटर स्ट्रेस के बारे में एक होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए वेर इन यू अंडरस्टैंड कि वाटर स्ट्रेस क्या है, या क्या क्या वाटर स्ट्रेस में क्या क्या हम काउंट करते हैं. क्या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को हम वाटर स्ट्रेस में काउंट करेंगे, क्या लेक्स की जो वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है उसको हम वाटर स्ट्रेस में काउंट करेंगे. अब जैसे दो तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगा बट मोर और लेस जो आपको उसमें आंसर करना है वो बहुत सिमिलर होता है. या ऐसा हो सकता है कि आपसे किसी एक ईयर में बहुत होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2019 का अगर आप ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया. एक होलिस्टिक व्यू पूछा है आपसे
कि आपसे वाटर स्ट्रेस क्या है पूछ दिया, एंड आपसे पूछ दिया कि कैसे कैसे अलग अलग रीजन में ये अफेक्ट कर सकता है। बट यहीं पे अगर आप देखिए, ओके अब यहीं पे अगर 2018 का क्वेश्चन आप देखिए, सो यहाँ पे लिख रहे हैं द आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। ये देख के दोनों लग रहे हैं कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बट एक्चुअली में मेन माइक्रो थीम इनका वाटर स्ट्रेस ही है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक तरह का वाटर स्ट्रेस है, तो आपको उस पे नॉलेज, तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माइक्रो थीम्स थ्रू योर पीवाईक्यूज, कि अच्छा ओके पूछ वाटर स्ट्रेस पे ही रहे हैं, बट अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने इसको पर्टिकुलर कर दिया है, मल्टीपल वाटर स्ट्रेस में से एक वाटर स्ट्रेस का एग्जांपल उठाया और उस पर क्वेश्चन दे दिया। इसीलिए आपके वन पेजर नोट्स में जब आप वाटर स्ट्रेस पे नोट्स बनाओगे तो वाटर स्ट्रेस का एक अलग से वन पेजर नोट्स होना चाहिए, और वाटर स्ट्रेस में जो जो चीजें आती हैं उनके एक एक वन पेजर नोट्स होने चाहिए। तो जैसे अगर ग्राउंड वाटर पे पूछ दिया तो आप किसी और चीज के बारे में नहीं बात कर सकते हो। कमीशन का इस चीज पे बहुत आई थिंक स्ट्रिक्ट नजर रहता है कि आप रेलेवेंट आंसर कर रहे हो। आपसे ग्राउंड वाटर पूछा है, आप लेक के बारे में आंसर में बीच में बात करने लगोगे, यू वोंट फेच मार्क्स, यू हैव टू स्टिक टू ग्राउंड वाटर। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, आप कुछ भी लिख के नहीं आओगे, आपको वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरे को लिखना क्या है। एंड हाउ डू यू गो अबाउट दैट, व्हेन यू हैव अ वन पेजर नोट, आप क्विकली उसको अपने रिवाइज करोगे उस टाइम पे, और वहां पे आपको चमकेगा कि ग्राउंड वाटर वाले नोट्स में मैंने ये सारी चीजें लिखी थी, इनको नोट कर लो। दैट इज हाउ माइक्रो थीम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस में। करेक्ट, एज यू सेड पीवाईक्यूज आर द की, और पीवाईक्यू को ही ढूंढ के हमें उसमें नोट्स बनाने हैं, राइट? सो इफ या यू टेक दिस एग्जांपल ऑफ आरपीए, हम्म it's a polity important, it's mentioned in the polity syllabus, right? Directly यस mentioned यस second यस features डायरेक्टली of मेंशन। RPA Act. अब इसमें इतने सारे माइक्रो थीम्स बन गए, उसके हाँ इतने डायमेंशंस बन गए। हाँ अब अगर आपको ये पता होगा तो आप वन पेजर नोट्स बहुत आसानी से बना लोगे, बिल्कुल बिल्कुल। right? So this is exactly how ideal micro one pager notes would look like. अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सब इसी में मिल जाएगा इन सारी चीजें। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट। हम्म। सो निकिता, मोर ऑन दिस इफ यू हाँ वांट। सो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ आरपीए इज मेंशन डायरेक्टली इन द सिलेबस, एंड देन हमने उनके डायमेंशंस खोले, अगेन द माइक्रो थीम्स जो हम अभी बात कर रहे थे कि ठीक है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन बनता है। नाउ अगर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे वन पेजर नोट्स बनाने हैं तो वो आप कैसे करिएगा, आप इफ यू स्टार्ट पिकिंग अप कंटेंट फ्रॉम गूगल एंड बुक्स, आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि यू विल गेट बॉग्ड डाउन और एकदम बॉम्बार्ड हो जाओगे आप, एंड इट यूज टू हैपन विथ मी ऑल्सो। बट रिमेंबर कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जिसमें आपको हर टॉपिक को समझना है, एंड इट वेरीज हर जीएस सब्जेक्ट के मतलब डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट, तो उसका नोट्स भी वन पेजर नोट्स भी डिफर करता है। यहाँ के केस में अगर हम देखें तो जैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, इसमें से अगर हम आप कोई एक तीन चार भी अगर हम याद रख लें ना और उसको अपने इंट्रोडक्शन में जस्ट पुट कर दें कि केरला के पायनियरिंग इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मेंशन कर दें, या 1979 के रिविजन्स के बारे में मेंशन कर दें, कनेक्टिंग इट टू की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको मार्क्स फेच करेगा। क्योंकि आप एग्जामिनर को सिर्फ ये नहीं बता रहे हो कि देखो मुझे मालूम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो हर बच्चे को मालूम होगा जो मेंस लिख रहा है। इतनी बेसिक प्रिपरेशन हर किसी ने की होती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक एवरेज से बिलो एवरेज आंसर वो लिख के आ जाए। वेयर डू यू ग्रैब मार्क्स, वेयर डू यू स्नैच दैट मार्क्स फ्रॉम योर एग्जामिनर एंड मेक श्योर कि आप बाकी बच्चों से आगे हो, डूइंग दिस वैल्यू एडिशन। थोड़ा सा रिसर्च करना होता है कि अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, ये तो मेरे को मालूम है, बट इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कहाँ से आया है। हर कोई भी चीज, स्पेशली पॉलिटी के पेपर में, दिस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई फील अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन दिस, दैट दे forget to kind of understand the historical revolution of things as to how things have evolved in our Indian polity. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारी चीजें याद रखो, बट एटलीस्ट एक दो पॉइंट अबाउट हाउ थिंग्स केम अबाउट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे पॉलिटी में, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाए, वी कैन मेंशन दैट इन आवर वन पेजर नोट्स। उसके बाद ऑफ कोर्स पहला बात आता है कि आप ऑब्जेक्टिव समझते हो किसी भी चीज का। अगर कोई भी चीज है जिसपे इलेक्शन कमीशन इतना एम्फेसिस दे रहा है, जब इलेक्शन चल रहा है, तो पूरी मीडिया का, हर एक सिटीजन का नजर है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि क्यों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑब्जेक्टिव है क्या उसका। तो आप उसको 3 से 4 से 5, 4-5 पॉइंट आई गेस इनफ होता है मेंस में, उससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते हो, क्योंकि 10 मार्क्स आपको 7 मिनट्स में खत्म करना है एंड 15 मार्क्स आपको 10 से 11 मिनट्स के बीच में खत्म करना है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्यों, और हमेशा एग्जाम्पल, ट्राई टू मेंशन एग्जाम्पल इन योर वन पेजर नोट्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। If you हम्म try, it's a very good habit, you will get into the habit of writing examples। आपके रिफ्लेक्स में होना चाहिए वो चीज कि एक स्टेटमेंट लिखा और उसके पीछे एक एग्जाम्पल डाल दिया। समटाइम्स इट माइट बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग, स्पेशली अगर क्वेश्चन कुछ बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया है यूपीएससी ने, बट दैट इज फाइन, बिकॉज इफ इट इज सो डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। बट हम्म ऐसे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स स्नैच करने हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज समथिंग जो हर समय न्यूज में है, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टेट का या तो इलेक्शन चल रहा है, और हर 5 साल के बाद तो जनरल इलेक्शन ही आ जा रहा है। तो इसमें आप बहाना नहीं दे सकते कि ये कहाँ से पूछ दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो बहुत बड़ी टॉपिक था, ये तो 2-3 साल से नहीं पूछ रहे थे। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम्म ये इस चीज का भी रियलाइजेशन कि इम्पोर्टेंट क्या है, जस्ट बिकॉज यूपीएससी उसको पूछ नहीं रहा है, वो भी है कि ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। दैट इज अगेन वहीं पे फिर से वन माइक्रो थीम्स का वैल्यू आ जाता है कि आप एनालाइज करिए कि बार बार पूछ क्या रहे हैं, और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं, अगर पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करके नहीं चलना है, उसके भी वन पेजर नोट्स होने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, इट कैन कम इन योर अटेम्प्ट। अगर वो बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ के जाओ वही आ जाता है, मेरे साथ तो ये बहुत होता था। सो आई यूज टू मेक श्योर दैट नॉट लीव आउट एनीथिंग, and that is what helped me in my GS1, because everybody told me not to give too much time on world history, and then 2 questions came in for world history. And students, this is the last stage of your note making. Understand, this will be your final notes that you will be using in the 90 days gap between prelims and mains, right? You won't start like this. So don't worry if you don't start like this. Don't Yes. chase perfection, but just start making notes. Eventually, you will realize that in the intro body conclusion format, it would suit better. And every subject would have a different style of one page notes. So this is GS2, right? So here commissions, committee recommendation, everything is very important way forward. But in GS1, geography answers, history answer, the one pager notes would differ, right? So don't worry. This is your last part. Start making the note, start building notes. So Nikita, now I think we should start telling them how they should build notes, right? This is Yeah. what we told them, how they have to approach one Yeah. page note making process, but how do they build from scratch? Yes. So I think you would be showing your own examples also in this. Yeah. So, Yeah. Nikita, how do they start building their one pager notes? So let's talk GS1 only because we have limited time. We can do more and more sessions with GS2 and GS3. Yeah. Questions we'll take at end, so no point of raising hands at this point. Okay. Nikita, how do they start? Okay. So वन पेजर नोट्स स्टार्ट करने का कुछ बहुत बेसिक थिंग्स है दैट वी ऑल नीड टू रिमेम्बर, एंड I struggled a lot in my previous attempts to make notes because I used to write a lot of things and I could not remember half of the things out of them. So first of all, making sure that you understand the syllabus, जो मैंने पहले भी बोला है, और ये बात सिर्फ मुझसे नहीं, हर एक रैंकर्स के मुंह से आप सुनोगे कि सिलेबस को प्लीज अच्छे से समझिए। दैट सिलेबस विच इज गिवन टू यू बाय द कमीशन इज नॉट टू टेल यू कि देखो आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, दैट इज एक्चुअली कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। वो आपको बता के दे रहे हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको बस यही यही पढ़ना है। वो बस भी बहुत है, मैं समझ रही हूँ, बट स्टिल सब कुछ नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिलेबस, रीड ईच जीएस पेपर का सिलेबस डीपली। अच्छा, ये चीज है कि आप यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस अगर देखते हो तो बस जीएस पेपर करके उन्होंने
बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना है. वॉट यू कैन डू इज कि आपको बहुत सारी जगह पे मिल भी जाएगा ऐसा किया हुआ. इफ यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो, और यू कैन फाइंड किसी भी साइट पे. वो सब्जेक्ट वाइज उस सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या है, ज्योग्राफी के अंदर क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या है. अगर तो अपना सिलेबस को आप उस तरह से डिवाइड कर लीजिए यूपीएससी के सिलेबस को देखते हुए. उससे फायदा ये होता है कि आपको ये समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कम पढ़ना है, किन सब्जेक्ट में कंटेंट वाइज यू नीड टू गिव मोर टाइम, एंड किस सब्जेक्ट में आपको कंटेंट वाइज थोड़ा सा कम टाइम भी स्पेंड करोगे आप तो चलेगा. सोसाइटी को अगर आप देखो तो आप उसको 10 दिन के अंदर आराम से कर सकते हो एज अ बिगिनर. ऑफ कोर्स व्हेन यू डू मेंस 10 days इज अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा टाइम है, बट एकदम जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10 to 11 days इज आई थिंक सोसाइटी का सिलेबस होलिस्टिकली कवर किया जा सकता है, 1 पेजर नोट्स एंड एवरीथिंग के साथ. बट वहीं अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखिए तो उसमें आपको टाइम लगेगा. मुझे ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली काफी टाइम लगता था बिकॉज मेरा थोड़ा वीक है ज्योग्राफी. तो इट टुक मी अराउंड 20-25 days टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट मेकिंग नोट्स इन ज्योग्राफी. और मैंने बहुत ही रफ सा एकदम बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाए जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरे काम नहीं आने जा रहा है. सो आई चेंज्ड टू दिस. आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को सिलेबस देख देख के काम करना होगा, और फिर एक एक सिलेबस की एक एक लाइन समझनी होगी, और फिर उसके हिसाब से मुझे 1 पेजर नोट्स बनाने होंगे. सो अंडरस्टैंड द सिलेबस, ब्रेक योर सब्जेक्ट्स, उसके बाद स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज. हमारी टेंडेंसी क्या होती है, दिस इज समथिंग आई ऑल्सो यूज टू डू. पहले मैंने किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, चैप्टर 1 से चैप्टर 2. स्कूल में यही करते आए हैं हम. बट आप एक बात समझिए, हम सबका एम्फोसिस हमेशा इस चीज पे क्यों होता था कि सिलेबस कितना है इस सेमेस्टर में. या अगर अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को याद हो तो हम कुछ सीनियर से फ्रेंडशिप करके रखते थे, जिससे जिससे हमें उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएं और हमें थोड़ा देखने को मिल जाए कि क्या पूछा गया है. दीज आर वेरी बेसिक बेसिक थिंग्स दैट वी यूज टू डू. तो यहाँ पे भी वही करना है. ये तो दिस इज एन एग्जाम विच इज द होल कंट्री इज गिविंग. तो आपका कॉम्पिटिटर, ये मान के चलिए कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो सीरियसली इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट 10 years के पीवाईक्यू को होलिस्टिकली एनालाइज कर रखा है. उनको मालूम है कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम, द चांसेस ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस की है. तो बिफोर पिकिंग अप योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग मेंस के लिए, मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पीवाईक्यू देखिए कि क्वेश्चंस पूछते क्या है. देख, बुक में क्या है, पब्लिशर का काम है आपको इंफॉर्मेशन देना. वो बहुत कम ही बुक्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस को एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में रख के बुक लिखती हैं. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. एकदम हर एक चीज एग्जैक्टली वही हो जो आपके सिलेबस में पूछा गया है वैसे बुक लिखना इज नॉट पॉसिबल. तो ऑफकोर्स वहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट होगा बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं होगा. या हो सकता है कि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट हो बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा. तो टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट बिफोर यू पिक अप योर बुक एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू चैप्टर्स, it is better that you first see the previous year questions. For example, आप हिस्ट्री में ही देख लीजिए कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मान लीजिए हिस्ट्री में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यूपीएससी का, काफी बार ये माइक्रो थीम काफी बार रिपीट हुआ है कि विमेन फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल है. अब आपको समझने का जरूरत है कि जब आप स्पेक्ट्रम अपना खोलेंगे तो यू हैव टू बी अलर्ट रीडिंग ऑल दोस फ्रीडम फाइटर्स का नेम जो भी विमेन है. आपको ध्यान रखना होगा. क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यू पढ़ा और आपको मालूम है कि ये 2-3 बार पूछा जा चुका है कि विमेन फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल है. एक क्वेश्चन है जहां वो गांधीयन एरा के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनका मूवमेंट को आप कैसे ब्रेक करिएगा. तो जब आप गांधी जी वाला चैप्टर खोलिएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार ये तो मेंस में पूछ रहे हैं. सो आप उस चैप्टर को ज्यादा एम्फेसिस दीजिएगा. यू विल रीड इट अकॉर्डिंगली कि ओके इस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अच्छे से सो दैट आई कैन आंसर इट इफ इट कम्स इन मेंस. तो फर्स्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज, देन गो थ्रू योर बुक्स. समझिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं. डोंट anyway you have to study too much in this exam. It is better कि आप unnecessary चीजों को पहले ही माइनस कर दो rather than giving your whole
sweat and energy in reading those bulky books and then realizing कि इसमें से 50% चीजें relevant ही नहीं थी. So please do that. First do your PYQs को एक बार देखिए, उसके बाद किताब को उठाइए और समझिए कि हमें पढ़ना क्या है. Then create micro themes, which is very very important. आपको ये ना स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि यार ये बहुत मेहनत है, बट ट्रस्ट मी इसका कॉस्ट बेनिफिट इतना ज्यादा हाई है, यू विल रियलाइज इट व्हेन यू सी द मेंस पेपर. और जब आपको पैटर्न दिखने लगेगा कि यार यूपीएससी एक्चुअली में इज टेस्टिंग योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं. Sometimes it is more about testing your ability to understand the pattern of questions they are asking rather than completely testing your knowledge. Of course 90% of thing is your knowledge, but 10% is कि आप pattern समझ रहे हो कि नहीं. क्या आप समझ पा रहे हो कि हम जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं वो किस पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहा है. तो माइक्रो थीम्स क्रिएट करिए. माइक्रो थीम्स एज इन विमेन रिलेटेड इशू पे माइक्रो थीम हुआ. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, मेंस के सिलेबस में देयर इज अ सोसाइटी का GS1 का जो टॉपिक है उसमें विमेन इश्यूज पे एक लिखा हुआ है. विमेन इश्यूज को एक माइक्रो थीम के जैसा कंसिडर करिए और उसके बाद उसकी एक बड़ी हेडिंग दीजिए अपने 1 पेजर अपने A4 शीट में. अब विमेन इशू है तो थोड़ा सा आपका हो सकता है 1 पेज के बियॉन्ड ले जाए, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच विल कम अंडर दिस. बट हाउ वी विल मेक श्योर कि इसको 2 पेज से ज्यादा हम नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं. हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक श्योर कि हम रिसेंट इवेंट्स से वाकिफ हैं. एंड ऑल्सो प्लीज अपने क्वेश्चन में ये भी देखिए कि किस विमेन इशू पे बात हो रहा है ना. अगर मान लीजिए सुसाइड इन फीमेल्स पूछा है तो यू कैन नॉट टॉक अपने रिसेंट इवेंट्स में आप सेक्सुअल हरासमेंट का एग्जांपल से स्टार्ट मत करिए. वो आपका बॉडी का पार्ट जरूर आएगा, गिव साइटिंग रीजन एज टू दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन दैट फीमेल्स कमिट सुसाइड. बट अगर फीमेल सुसाइड पर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपका रिसेंट इवेंट अगर आप उसको इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हो तो इट शुड बी अ रिसेंट इवेंट रिलेटेड टू सम फीमेल who has committed suicide. अगर आपके पास नहीं है कोई recent event तो कोई relevant data डाल दीजिए. आपको ये सारे डेटा at your hand होने चाहिए about women issues कि things like female labor force participation rate क्या है, women literacy rate क्या है, NCRB का data related to crime against women. These are the things जो आपको feel होगा कि यार ये सब बहुत है, but trust me बहुत नहीं है. This is the bare minimum you have to do because all the rankers they are learning it. They are in a constant habit of remembering these things and keeping a note of these things as they go about reading the newspaper. So if not recent event then some relevant data as to how many women commit suicide every year, things like that है ना. तो एक recent event और relevant data. उसके बाद आपका आता है की चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब विमेन इशू में अगर आपसे मान लीजिए कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए विमेन सेफ्टी पे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि विमेन सेफ्टी को लेके चैलेंजेस क्या क्या है. तो आपके 1 पेजर नोट्स में विमेन बीइंग अ विमेन के अंडर क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है लड़कियों को, वो आपके 1 पेजर नोट्स में होना चाहिए. एंड यू कैन राइट मल्टीपल पॉइंट्स उसमें जो किसी एक क्वेश्चन से आपका जाके भिड़ जाएगा. यू कैन उसके बाद जब आपने चैलेंजेस एड्रेस कर दिया तो आपको ये भी बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या है. कीप दिस इन अ हैबिट कि wherever you are mentioning challenges in your 1 pager notes या आप issues mention कर रहे हो किसी भी topic के अंदर irrespective of whatever that topic is, it could be food processing industry, it could be anything like CAG के functioning में क्या challenges है, कुछ भी अगर challenges और issue mentioned है आपके 1 pager notes में तो आपके पास way forward होना चाहिए. You cannot skip way forward because I think I've said this multiple times in my other videos also. Because you are going to be a civil servant, the commission expects solutions from your side. You just cannot lay down ki ye issues hain and be done with it. No, you have to give way forward. So make it a habit to put way forward in your 1 pager notes. And way forward में आप क्या डालते हो? Way forward में आप या तो country के best practices डालते हो, कोई भी government scheme हो गया या स्टेट लेवल स्कीम हो गया जो आपको लगता है कि इट हैज वर्कड वेरी वेल या दे आर वर्किंग वेरी वेल और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी, वो आप लिखिए. इसके अलावा इफ यू नो दैट इफ देयर इज एनी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस
जो आपको लगता है कि विमेन सेफ्टी के लिए दिस इज समथिंग विच इज रियली वर्किंग गुड फॉर दिस कंट्री और दीज कंट्रीज हु आर फॉलोइंग इट, मेंशन दैट। एंड कंक्लूजन आप या तो एक कोट से एंड कर सकते हो या आप कोई स्टेटिस्टिक्स दे सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन में स्टेटिस्टिक्स दे रखा है तो कंक्लूजन में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन में स्टेटिस्टिक्स नहीं दिया है तो आप उस कंक्लूजन में स्टेटिस्टिक्स दे दीजिए। सो दिस इज हाउ your one pager note should look like. Any recent event and data related to it, issues, challenges, impact if that topic has any. Remember that कि impact में आपको दोनों negative और positive impact लिखना है। इसके अलावा measures, way forward, ये आपके one pager notes में होने चाहिए। Again, एक one more thing which is important कि when you are making your notes, जनरली स्टार्टिंग में टेंडेंसी होती है दैट वी राइट टू मच। हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेते हैं। नहीं, वो मत करिए। अंडरस्टैंड दैट इन इस एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो आपका कंटेंट भी अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट होना चाहिए। नॉट सेइंग कि आपके वन पेजर नोट्स 150 से 250 वर्ड्स के अंदर होने चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके कंटेंट में वर्ड्स इतने होने चाहिए कि आप उसको 150 से 250 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सको। आप अगर 10,000 वर्ड्स का नोट्स बना दोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा उसको 150 से 250 में कन्वर्ट करने में व्हेन द रियल क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो अपने नोट्स को भी क्रिस्प रखिए, शॉर्ट रखिए। एक हेडिंग के नीचे जो भी सब हेडिंग आप दे रहे हो उसमें 2 से 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। तो स्टिकिंग टू योर वर्ड लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कोई भी हर सब्जेक्ट में आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू काइंड ऑफ लिमिट व्हाट यू आर राइटिंग, बट आदत डालिए हाथ बांधने का। मेरे जैसे बच्चे को जिसने यूनिवर्सिटी से 5 साल पढ़ाई की है, मेरे लिए इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टू डू दैट बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू राइटिंग लेस, बट आई हैड टू डू इट एंड इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस ओनली। Making one pager notes and doing answer writing practice along with it is going to help you a lot in kind of understanding as to how you will limit your content. And then through some of my notes I'll tell you कि आप कैसे उसको कम करते हो अपने कंटेंट को आगे के सेशंस में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। So this is just a very rough प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ आई मेड नोट्स। और ये बिल्कुल ऐसा है जो मैंने इनको GS1 पेपर के 2 दिन पहले देखा और जल्दी जल्दी पलटा है। सो दिस इज माई स्पेक्ट्रम का नोट्स। जो वो स्पेक्ट्रम का पोस्ट स्पेक्ट्रम में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर्ड है ना। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट अगर आप छोड़ दीजिए तो सिर्फ प्री मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले तक जो भी हमारा नेशनल स्ट्रगल रहा है उस वाले पार्ट को आई थिंक स्पेक्ट्रम कवर्स इट इन 400 to 500 पेजेस। उसको मैंने आई ब्रॉट इट डाउन टू 50 to 60 पेजेस। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि उसको वो 400-500 पेज मैं दोबारा उठाऊं प्रीलिम्स के बाद और एक एक करके स्पेक्ट्रम में देखना शुरू करूं। वो नहीं है पॉसिबल, करना है, नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, आपको ऑप्शनल भी करना है साथ में, है ना। तो व्हाट आई डिड बिफोर आई क्वालिफाइड माई प्रीलिम्स, उससे पहले भी व्हाट आई डिड कि मैंने 2-3 टॉपर के नोट्स रेफर किए और थोड़ा देखा कि जो ये मोटी बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ज्योग्राफी की 4 NCERTs हैं, इनको ये लोग छोटा करते कैसे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई केम विद। अब जैसे पहला चैप्टर है स्पेक्ट्रम का जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यू शुड नो कि व्हाट आर द हु आर द यूरोपियंस, व्हाट यूरोपियंस केम इन आवर कंट्री। एंड 2 चीजें हैं, एक तो ये समझिए कि पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये 3 सबसे मेजर यूरोपियंस हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है। बाकी में कंटेंट छोटा है और क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं एज सच डायरेक्टली उन पे। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज यूज देयर एग्जांपल्स, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस उन पे बहुत नहीं आए। डायरेक्ट क्वेश्चंस यूजुअली पोर्तुगीज, फ्रेंच या ब्रिटेन के ऊपर आते हैं। और डच और डेन्स का यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा मेरा, वॉज द रीजन कि मैंने स्पेक्ट्रम इतनी बार पढ़ लिया था कि मुझे डच और डेनिश का याद हो गया था। आई न्यू कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने कहाँ फैक्ट्री सेटअप की थी। अगर मुझे उनके बारे में आंसर लिखना पड़े तो मैं लिख लूंगी। एंड दैट इज वेर योर रिविजन कम्स इन
कि आपको रिविजन भी करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। व्हेन यू मल्टीपल टाइम्स आप उस बुक को विजिट करते हो, वो आपको ऐसे भी याद हो जाता है, तो वो आपको अपने नोट्स में फिर नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। तो पोर्तुगीज के बारे में मैंने मेंशन किया है। मैंने मेंशन किया कि ठीक है, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ है। एक रीजन है जो मेंस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाई, व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। तो आप स्पेक्ट्रम में देखिए, बहुत अच्छे से मेंशनड है, वन पॉइंटर से पॉइंट दिया हुआ है और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बट क्या मेरे पास इतना टाइम और स्पेस है कि मैं वो सारे एग्जाम्पल्स को, सारे पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करते चलूं? नहीं। बट मुझे ये याद होना चाहिए कि वो पॉइंटर्स थे क्या क्या, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी बार आंसर राइटिंग कर लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है, मैं 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट मुझे अगर वो बुलेट पॉइंट ही नहीं याद आएगा, तो मेरे इतना एक्सप्लेनेशन का भी कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। सो आई जस्ट मेंशन कि क्यों डिक्लाइन किया। रिलीजियस पॉलिसीज के वजह से, उनके डिस्कवरी ऑफ ब्राजील के वजह से, यूनियन जो हो गया स्पेन एंड पोर्तुगल का, उसके बाद अर्लियर मोनोपोली उनकी फिनिश हो गई बस। और डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक एग्जांपल दे दिया कि क्या क्या डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस था। रिलीजियस पॉलिसीज में एग्जांपल देने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे याद था कि वो लोग फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव भी हो जाता है, इन द सेंस कि आपको क्या क्या कंटेंट याद हो जा रहा है। हिस्ट्री मुझे थोड़ी जल्दी याद भी होती थी, इसलिए मेरे हिस्ट्री के नोट्स आपको बहुत बड़े बड़े नहीं दिखेंगे। मैं बस वही पॉइंटर्स याद रखती थी जो मुझे मालूम था कि मैं भूल सकती हूँ। अगेन आप देखिए, उनका सिग्निफिकेंस मैंने मेंशन कर रखा है एक एक लाइन में एग्जाम्पल्स के साथ, कि नेवल पावर था वो लेके आए वो हमारे कंट्री में, मिलिट्री इनोवेशन लेके आए, क्या इनोवेशन लेके आए, एग्जाम्पल्स लिख दिया। उसके बाद आपको याद होगा स्पेक्ट्रम में एक पार्ट है जहां पे उन्होंने पूछा है कि क्यों फ्रेंच फेल कर गए ब्रिटिशर्स के आगे, तो वो मेंशन कर दिया। मुझे फील हुआ कि ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूरे वॉर की हिस्ट्री मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, उसको मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें से वन वर्ड के, वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का चांसेस ज्यादा है दैन मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि फ्रेंच और ब्रिटेन की पूरी वॉर की हिस्ट्री बताओ। नहीं आता है इस तरह का क्वेश्चन, सो यू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड फोकस ऑन द मोर हाईलाइटिंग पार्ट्स ऑफ योर बुक, विच इज कि व्हाई डिड द फ्रेंच फेल। तो वो भी स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट अगेन आपको उसको 3-4-5-6 लाइन में इतना लिखना नहीं है। आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको फटाफट कंपैरिजन करना है, और आपको ये भी बताना है कि इंग्लिश क्यों सक्सेस किया, और इनके ऊपर पॉइंट्स डाल दिया। और इसको ही मैं वीक के एंड में एक बार रिवाइज कर जाती थी, तो मुझे याद रह जाता था, मुझे याद रह जाता था कि क्या था। तो मेकिंग वन पेजर नोट्स इज वन थिंग, फिर ये नोट्स बना के साइड में रखना नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू रिविजिट देम एज मच एज यू कैन। ठीक है। सो दिस इज, उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शो यू अगेन पीपल्स रेजिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, उसमें आप देखिए फैक्टर्स, क्यों क्यों पीपल का रेजिस्टेंस हो रहा है, क्या फैक्टर्स थे जिनके वजह से पीपल रेजिस्टेंस हो रहा है। अब नाउ पीपल रेजिस्टेंस भी दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, लाइक सिविल रेजिस्टेंस था, पेजेंट रेजिस्टेंस था, ट्राइबल था, मिलिट्री था। सिविल के अंदर 2-3, जैसे मैं क्या करती थी, बहुत सारे दिए हुए स्पेक्ट्रम में है, आपको इतना याद नहीं रहेगा, मे बी प्रीलिम्स में आप उतना रट जाओगे, बट अगर मेंस में आपसे पूछ दिया तो आप 3-4 एग्जाम्पल ही कोट कर पाओगे ना। तो जो 3-4 एग्जाम्पल्स मुझे लगे कि मुझे याद रह सकते हैं, वो मैंने नोट कर दिया। वो नोट कर दिया, थोड़ा बहुत ईयर मेंशन कर दिया, कौन इनका लीडर था वो मेंशन कर दिया, अगर स्पेसिफिकली बुक में मेंशन है कि किस कारण से हुआ था तो वो मेंशन कर दिया, और फिर फट से मूव ऑन कर गए पेजेंट्स में। पेजेंट्स का मैंने एक अलग से नोट बना रखा था, तो इसलिए मैंने वहां पे ऑलरेडी डन कर रखा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बड़ा सा नोट बनाया था पेजेंट्स के ऊपर, विच अगेन मेरे को उसको अल्टीमेटली शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि इतना याद करना पॉसिबल नहीं था। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मेरे को वन पेजर नोट्स करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ अगर इतना बड़ा बड़ा मेरे को सिर्फ पेजेंट वाले चैप्टर में मैं नोट्स बना रही हूँ, तब तो स्पेक्ट्रम से ज्यादा बड़े मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हो जाएंगे। देन ट्राइबल में आप गए तो उस तरह से भी मूव फॉरवर्ड कि ट्राइबल में क्या कॉजेस थे। सो दिस इज हाउ आई यूज टू समराइज माई हिस्ट्री का नोट्स। अब अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो दिस इज, ये अगर आप क्वेश्चन देखो पाम ऑयल वाला, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्टार्टिंग में आई यूज टू मेक नोट्स।
एकदम मुझे उस वक्त बहुत आइडिया नहीं समझ आता था, तो मैं ऐसे नोट्स बनाती थी ना। ये जो मेरे नोट हैं अबाउट पाम ऑयल कल्टीवेशन, इसमें है चीजें काम की। आई एम नॉट सेइंग कि काम की चीजें इसमें नहीं है, बट इसको और बेटर किया जा सकता है। एंड हाउ यू, आप इसको बेटर कैसे करते हो मैं आपको बताऊंगी। पाम ऑयल पे मान लीजिए, मैंने नोट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि करंट न्यूज में बहुत था, एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी आके पाम ऑयल पे उस समय बात कर दी थी। एंड देन आई थिंक 2022 में या 2021 में किसी ईयर में प्रीलिम्स पे क्वेश्चन भी आ गया था पाम ऑयल का। तो मुझे लगा कि ये भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेते हैं, मेंस में पूछ दिया तो, है ना। सो पाम ऑयल में पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन, आप मैंने जल्दी जल्दी गूगल किया कि क्या, पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर पाम ऑयल पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू इन मेंस। सिंस इट इज अ क्रॉप, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या पूछ सकते हैं, उसके पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन पूछते हैं। आप अपने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी देखिए, किसी भी क्रॉप के बारे में वो किस तरह से बात करते हैं, उसका पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने, आई यूज टू मेक, आई हॉरिबल इन ड्राइंग, तो जो भी मुझसे जैसे भी बनता था टूटा फूटा वर्ल्ड मैप मैं बना दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट यही है ना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये डायग्राम्स बनाना अपने वन पेजर नोट्स में शुरू, ये मत सोच के डिले करिए कि बाद में जब आंसर राइटिंग करेंगे तब मैप्स बनाएंगे। नहीं, अपने वन पेजर नोट्स में ये डायग्राम्स रखिए। व्हेन यू विल रिवाइज इट, आप उसको इसको भी बार बार रिविजिट करिएगा, एंड समहाउ आपके दिमाग में छपने लगेगा कि पाम ऑयल का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मेकिंग डायग्राम्स इन योर वन पेजर नोट्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कीप इट एज अ हैबिट, जहां भी पॉसिबिलिटी है डायग्राम का, नॉट जस्ट ज्योग्राफी, एनीवेयर। आर्ट एंड कल्चर में इफ यू फील स्तूपा पे अगर क्वेश्चन है तो स्तूपा का डायग्राम अपने वन पेजर नोट्स में बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर GS3 में मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, और आपको मालूम है, तीन चार एग्जाम्पल्स आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्पीड पे पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, एंड यू नो कि पास्ट में स्टैम्पीड इन इन जगह पे हुआ है, फट से अपने वन पेजर नोट्स में मैप बनाइए एंड मेंशन द प्लेसेस जहां पे स्टैम्पीड हो चुका है। गोज अ लॉन्ग वे इन फेचिंग यू गुड मार्क्स। उसके बाद कोई भी क्रॉप में दिक्कत क्या हो सकता है, उसके इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लिया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, एक एक दो दो लाइन में बात की। बट उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे थोड़ा एक एक दो दो लाइन में लिखने के बजाय मैंने एक एक वर्ड्स में लिख दिया, ये सोच के कि मुझे याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इश्यूज में अगर आप डिफोरेस्टेशन लिख रहे हो तो डिफोरेस्टेशन क्या है और उससे हो क्या रहा है, दो लाइन में उसको खत्म करिए। दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ मेकिंग नोट्स। दैट इज द एडिशन दैट दीज नोट्स नीड। कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि कुछ क्रीचर्स हैं जिनकी डिक्लिनेशन हो रही है, एग्जाम्पल मलायन टाइगर। इस तरह से अपने नोट्स बनाइए, ये आपको याद रह जाएगा। But again, it is a good habit to at least give a 1 or 2 line explanation after each sub point that you give. And then if you see this last में वे फॉरवर्ड दिया है क्योंकि ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं तो आपको वे फॉरवर्ड मेंशन करना होगा। एंड देन नेशनल मिशन ऑफ एडिबल और एक डेटा डाल दिया है। अब इससे इस आंसर फ्रेमवर्क में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। पहला, तो मेरे को स्टार्टिंग में बताना होगा कि पाम ऑयल न्यूज में क्यों है। इधर आई कुड मेंशन कि रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, या वी कैन ऑल्सो मेंशन कि रिसेंटली अभी डिस्कवरी हुआ है कि कितने जगहों पे हम पाम ऑयल यूज करते हैं और उसका बेनिफिट्स और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिसएडवांटेजेस क्या है। कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, दैट इज द एडिशन दैट दिस आंसर नीड्स। एंड लास्ट में अ बेटर कंक्लूजन कि ओके और हमें ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, हमें यहाँ पे द डेटा अबाउट हाउ मच पाम ऑयल वी इम्पोर्ट, इसका डेटा मिसिंग है, तो ये सब चीजें आपका एडिशनल होना चाहिए उसमें, to make this answer, this one pager note a little more better, and trying to again restrict it in 1.5 page. And so if we move further, uh, ये मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं। नाउ अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री वाज बिलीव्ड टू बी नॉट बी सो इम्पोर्टेंट। दो ही क्वेश्चन इस बार, तो चलो दो क्वेश्चंस आ गए, पहले तो या तो एक क्वेश्चन आता था या क्वेश्चन ही नहीं आता था, किसी किसी ईयर में तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो मेरे नोट्स सब्जेक्ट के रेलेवेंस के अकॉर्डिंग छोटे होते जाते हैं। अब फैशिज्म अगर पढ़ा है कि क्या है, तो एक बेसिक आइडिया कि फैशिज्म है क्या, फैशिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, क्या कारण थे, तो रीजंस दे दिया, ट्रीटी ऑफ वर्साय, पोस्ट वॉर स्ट्राइक्स। तो अब ऐसा है कि ये
अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इसको पढ़ के तुम्हें याद कैसे रह रहा है कि तुम्हें लिखना क्या है। बात ये है कि मैंने जो मेन थ्योरी बुक है वो 2-3 बार पढ़ रखी है, वहां से फिर मैंने वन पेजर नोट्स बनाए हैं, इसीलिए मेरे को ये सब बस टॉपिक्स देख के याद आ जाता है कि इसमें अंदर का कंटेंट क्या लिखना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि व्हेन यू सी द, आप पहले पीवाईक्यूज देखिए, फिर बुक की रीडिंग करिए अच्छे से। यू नीड वन और एटलीस्ट 2 रीडिंग्स टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड देन स्टार्ट मेकिंग द वन पेजर नोट्स। क्योंकि आप अगर पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइएगा तो आप एनीवे बहुत सारी चीजें ऐसे लिखिएगा जो बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगी और आपको नोट्स में लिखने का जरूरत नहीं है। सो सेम थिंग विथ वर्ल्ड हिस्ट्री, मुझे रीजंस मालूम थे, मैं बस इवेंट्स भूल जाती थी कि क्या क्या इवेंट्स थे यार, वो 1-2 लाइन तो मैं लिख दूंगी बट उसके पीछे का मेन इवेंट मुझे याद रहना चाहिए। तो बस वो रीजंस नोट किए। उसके बाद फीचर्स में अगर आप आओ कि इनके फीचर्स क्या थे, इससे हुआ क्या, फाइनली रिजल्ट क्या आया, तो वो बस पॉइंट्स बना के लिख दिए। सेम विद नाजिज्म, कि क्या है ये, रीजंस क्या है, फीचर्स क्या है, हिटलर के राइज के बारे में थोड़ा सा साइड में एक नोट बना दिया। एंड देन आई यूज टू रिविजिट इट ड्यूरिंग माई मेन्स। बीच बीच में व्हाट आई यूज टू डू इज, पूरे हफ्ते पढ़ाई की, जब नोट्स बनाने बैठे तो दिन भर लगा उसमें नोट्स बनाने में, and I used to choose a day where I will pick up that notes and revise it. Make your one pager notes but also make a habit of रिवाइजिंग देम टाइम टू टाइम। उसको बना के बस साइड में आपको कलेक्ट नहीं करना है, प्लीज डोंट डू दैट, इट विल डू यू मोर हार्म देन गुड। So this was a rough idea about how you can make notes on GS1. Baki, I think we'll have some sessions, sir, where we will talk about other subjects. So we can also have more sessions. You can also take live classes Yeah. on YouTube for GS2 and GS3. I believe this was pretty comprehensive for GS1. You have told them the structure and how to crisp it, how to look at PYQs, micro themes, incorporate each and every framework that you have told them. I'm sure this is sufficient. They are sufficient knowledge they have gotten from this session. So thank you so much, Nikita, for taking out your time. It was a lovely session.